Now we will move to our basic what we are here Sure. to. And now I will show you some example. I am using this HR schema. You guys also can Bishara onlinely sir, use one it more on the. thing I want you to cover here, because last time when you took the session, you told us that there is something or some online database you can go and create and do the practice. Yeah, I don't. I was just showing. I am just showing this. Yeah, please help us Okay. here. Uh, Everyone can note it. yeah, please. This is very useful. Huh? This is Uh, online database that you can do the practice without creating your own freesql.com. database. Yeah, And please. there these have given the many. Okay. Okay, so I am They can create connecting. their own database, or they It's created. can There you is create a one new sample database created HR. can they create their own database? This is already created online. Ah, okay, They okay. At can least they create can their create the table table and level. all They from can that. create. They can Yeah, create yeah. anything. Okay, Yeah, they can create anything there. that's good. There is a following section. So they are freesql.com. There they can go and check. Yeah. Here only maybe. Sorry. Mm. I am taking any table. I am taking something. Okay. 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 So here you can practice. This is freesql.com. Okay, I will go That's to great. my similar I am using here, so I can control the. If I have to select anything, this is simple select. This is what this will. There are these data I said is stored in the form of tables. So there are many tables. So you guys can check here freesql.com. Similar I have created, so you can also do the same. This is simply this will select all. If I select star from employee, it will select all the column, all the rows for a table. This is one basic table, employees. And this has employee ID, many columns. This is the one thing, select star. There, this is simple table. This is simple select star from employees. It will select table. Actually, I'm just briefing the database. Mostly I'm not going because I know everyone know here Java, any language must be knowing and they must be knowing database. Here, all the application, they have the same database. Basic are three types of database: number, character, date. And there are further divided in number, integer, big, everything. And similar in the character, they have varchar, to, clob, anything. There are basically types of data, three types of database, data type: number, date, character, and boolean. So here also same. So so these all mostly when we are creating a table, it has three. These are the basic form. There are many. If you go in the character, it has long, clob, as per our requirement. We will cover it later. तो अभी ये एक टेबल है, अगर किसी ने मुझे वहां पे पूरा डेटा देखना है तो मैं जाऊंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करूंगा, पूरे कॉलम पूरे रोज आ जाएंगे। अब अगर मुझे कुछ उसमें फिल्टर करना है तो वो उसके लिए भी कमांड है। एवरी
कोई भी लैंग्वेज है उसके कुछ प्रोटोकॉल है, उसकी कुछ सिंटेक्स है। अगर इंग्लिश है हम बोलते हैं, उसके भी कुछ अल्फाबेट है, उसके थ्रू उसके वर्ड बनते हैं और उसी में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ उसको आगे पीछे करेंगे तो सामने वाला बात नहीं समझ पाएगा। सिमिलरली ये भी एक लैंग्वेज है, तो ये भी इसके भी कुछ प्रोटोकॉल हैं, रूल्स हैं, वो फॉलो करते हैं, उस हिसाब से हम कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस के साथ। अभी अगर कोई बोले कि एम्प्लॉय आईडी, सिंपल सा एक मैं स्टार्ट करता हूँ कि मुझे एक ही डेटा, जो एक ही इंसान जो एम्प्लॉय है उसका डेटा देखना है, मैं बोलता हूँ 108 समथिंग। तो वो एक ही रोल आएगा, ये फिल्टर कर रहा है, मतलब वेयर क्लाउज जब लगा दिया हमने तो ये फिल्टर कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फिल्टर कर सकते हैं उसमें। अभी ये तो एक फिल्टर था, अभी अगर मुझे और मल्टीपल फिल्टर लगाना हो। Yeah. इफ अगर अभी मल्टीपल करना, अभी किसी ने बोला डिपार्टमेंट 90 से कि मुझे एम्प्लॉय देखना है, उसमें से किसी को देखना है कि किसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, तो उसमें एंड लगा देंगे, मतलब वही नॉर्मल वेयर एंड, मतलब जो लॉजिक चल रहा है सिंपल। सॉरी, ग्रेट। तो वो जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है वो आ गया। ऐसे फिल्टर जो भी डेटा है हम उसको फैच कर सकते हैं। ये कैसा है ना, ये एक एलियास है। अभी ये जो टेबल है उसका नाम एम्प्लॉयज है। अभी मैंने टाइपिंग के लिए उसको कर लिया क्योंकि मैं टाइप कर सकता, ये अगर मैं नहीं लेता और ये ऐसे लिखूं मैं, तब भी ये चलेगा अभी। वो कैसा है ना, वो एलियास है, एलियास का एक छोटा एलियास बना दिया मैंने। अब मुझे अगर मुझे यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी तो सिंगल सिंगल टेबल है वो भी है, और अभी मुझे ये तो एक टेबल है। अभी मल्टीपल टेबल होंगे तो उसमें सेम कॉलम रहेंगे, तो मैं पूरा उसको टाइप नहीं करने बैठूंगा। तो उसको एक एलियास बना दिया, मतलब अभी हम किसी का भी एक नाम होता है कुछ, उसको शॉर्ट नेम दे देते हैं। अभी किसी का बड़ा नाम है तो उसके नाम से जानने जाता है, मतलब अभी एम्प्लॉयज को ई दे दिया तो ई रिफर करूंगा तो वो समझ जाएगा कि ई रिफर कर रहा है तो एम्प्लॉयज को ही रिफर कर रहा है। ऐसा होता है। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं। मल्टीपल टेबल जब आएगा तब उसका आपको फर्क दिखेगा। ये है। तो फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर एंड एंड करके, बिटवीन, बहुत सारे आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो हम सारे यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक सिलेक्ट। तो आगे भी मैं इसमें बहुत सारे बिटवीन है, इन है, वो सारे क्लाउज आएंगे। अभी मैं आपको उसमें जब नेक्स्ट में समझाता, ये एक सिलेक्ट हो गया। अभी हमें कुछ दूसरा आता है हमारा, डीएमएल इंसर्ट। अभी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ मैं इस टेबल को।
अभी एक करिए, मैंने इसका एक कॉपी टेबल बना लिया। अभी क्या होगा, इंसर्ट, अभी कुछ कोई नया एम्प्लॉय आया तो अगर उसको इंसर्ट करना है, कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया। तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइपिंग हो जाएगी। ये समझो कोई नया नया रो इंसर्ट करना है, कोई नया डिपार्टमेंट किसी को खोलना है। अभी समझो अभी उसकी कंपनी थी, उसको अभी किसी नए डिपार्टमेंट करना है, तो अभी इसको इंसर्ट, इंसर्ट का क्या है, सीधा सिंपल, इंसर्ट इनटू टेबल। जो कॉलम है वो कॉलम के नाम लिखना है, इंडेक्स, वो फिर वैल्यूज, वहाँ पे वैल्यूज दे देना है ये। तो ये नया डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखने लगा। ये नया डिपार्टमेंट आ गया। तो इस तरह से न्यू रोज कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका ये है, एक तरीका मैं इसको, या जितने अभी अगर मुझे 3 ही कॉलम लेना होते तो मैं 3 कॉलम लेके वहां पे जितने कॉलम लेंगे वहां पे उतनी वैल्यू। इनर, अब जो कॉलम हमने अगर जिसको नहीं लिया, जब भी मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ किसी टेबल में, जो कॉलम हमने सेलेक्ट नहीं किया उसमें नल वैल्यू जाएगी, या तो आइदर डिफॉल्ट वैल्यू। कि हमने जब टेबल हम क्रिएट कर रहे थे, हमने उसमें बोल दिया था कि डिफॉल्ट, अगर कुछ भी डिफॉल्ट नहीं सिलेक्ट किया तो नल जाएगी, और कुछ भी डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू, वो अगर क्रिएट करते टाइम सिलेक्ट किया होता तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जाती। ये इंसर्ट हो गया है, बेसिक है, आप लोग वहां पे कर सकते हैं। अगर जब टेबल क्रिएट कर रहे थे वहां पे अगर हमने उसको डिफॉल्ट वाली वैल्यू दी है, सेट की है कि इस कॉलम की डिफॉल्ट वाली ये होना चाहिए, तो जब हम उसको इंसर्ट करेंगे तब वो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी। नहीं तो हमने अगर वहां पे क्रिएट करते टाइम या बाद में उसको सेट नहीं किया है, तब वो नल ही जाएगी। अब ये जो टेबल में जो है ना, वो सेट नहीं की है डिफॉल्ट वैल्यू, तो वो नल ही जाएगी। मतलब मोस्ट केसेस में डिफॉल्ट नहीं सेट की रहती है, तो हमने अगर कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो नल जाएगी। नहीं तो अदरवाइज किसी ने बोल दिया, अभी एक क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहा था उसने, कि अगर कोई कुछ भी वैल्यू वहां नहीं सिलेक्ट करेगा तो 1 डाल देना, तो वहां पे 1 ले लेता। ये तो ये इंसर्ट हो गया।
अभी अपडेट करना है तो अपडेट का भी सेम, अपडेट टेबल नेम। अभी मुझे लगता है कि मुझे ये जो मैंने डिपार्टमेंट बनाया इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। मार्केटिंग था उसका, समझो अभी मुझे सेल्स करना है, लेकिन किसका करना है, जिसका डिपार्टमेंट आईडी। बेसिकली जो वो दिख रहा है उसको जब करने का, वो अपडेट टेबल मतलब वो अपडेट करने का टेबल। क्या अपडेट करना है, डिपार्टमेंट नेम को सेल्स करना है। अगर यहाँ पे नीचे नहीं देंगे तो वो सब, तो किसका करना है, 301 का। अगर 301 नहीं दिए तो वो पूरे टेबल को जो है वो चेंज कर देगा। नहीं दिया तो उसने क्या किया, पूरे टेबल का चेंज कर दिया। मैं उसको रोल बैक कर, तो हमको सिर्फ एक का करना है। तो हम वो जो जैसे हम सिलेक्ट के टाइम में भी जो वेयर कंडीशन में जो फिल्टर हम करेंगे वो उस तरह से चलेगा। यहाँ पर भी जो फिल्टर हम लगाएंगे वो उसी फिल्टर पे चलेगा। अभी देखो इसका, भाई ओ सॉरी, वो जो मैंने इंसर्ट किया था उसको मैंने खत्म ही कर दिया था, रोल बैक। हाँ, जब तक कोई भी हमने इंसर्ट किया, अपडेट किया है, देखो टेम्पररी तो वो इधर है। अगर मैंने उसको कमिट कर दिया तभी वो डेटाबेस में कमिट होगा। अभी एक दिखाता हूँ मैं आपको जैसे क्या है। अभी मैंने ये यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन अभी मैं दूसरा सेशन कनेक्ट कर लूँ ना, यहाँ से होगा क्या। इससे हो नहीं रहा। अगर दूसरा सेशन में कनेक्ट कर लेता हूँ, ये एक सेशन है, ये जो है ना एक सेशन है, तो इसमें जो कर रहा हूँ मैं इसी में दिख रहा है। जब तक मैं इसको कमिट या रोल वर्क नहीं करूंगा ये दूसरे सेशन में नहीं जाएगा। मैं कल दूसरा कुछ टूल इंस्टॉल करता हूँ तो फिर वहां से देखा सकता हूँ ये मल्टीपल पे कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो अभी एक का चेंज करना है, तो एक चेंज कर दिया, तो इसने इसी का चेंज किया होगा। कुछ भी जब तक कमिट या रोल बैक नहीं करेंगे वो डेटा यहाँ पे टेम्पररी है, वो जो इस सेशन के लिए टेम्पररी है वो दूसरे सेशन से को नहीं दिखेगा जब तक हम उसको ये कमिट नहीं करेंगे। ये कमिट यहाँ से भी कमिट है, या फिर उसको कमिट, वो तो टूल है तो उसमें दिया है, नहीं तो ये एक बार कमिट। अब मैं रोल बैक करूँ कुछ भी करूँ, अब वो मुझे जो चेंज था मेरा वो दिखेगा। उस टाइम मैंने रोल बैक किया था तो वो जो चेंज किया था वो चेंज हो गया था, वापस से उसने कर दिया था। अब ये जो है मेरा कमिट हो गया। तो इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो वो कमिट मतलब ये सेशन, ये जो जिससे मैं कनेक्ट, मेरा सेशन है। और मल्टीपल एक डेटाबेस है, मल्टीपल लोग इस जिसके पास भी यूजर नेम पासवर्ड होगा वो कनेक्ट कर सकता है किसी भी टूल से, किसी भी एप्लीकेशन से, कहीं से भी। तो यहाँ पे जो भी चेंज हम कर रहे हैं वो चेंज यहीं तक है, वो दूसरे वाले सेशन को नहीं देखेगा जब तक, अनलेस कमिट एंड रोल। सिंपल, इसकी जरूरत भी है। और वो पूरा ट्रांजैक्शन ही कमिट होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी समझो आप एक बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप आपने किसी को पैसे भेजना है, तो पैसे जब हम भेजते हैं तो क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्या करता है सिस्टम, एक अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करता है पहले वाले को, दूसरा सामने वाला जो बेनिफिशियरी है जिसको हम पैसे भेज रहे हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करता है। अब अगर समझो कि कोई ट्रांजैक्शन हो रहा था, यहाँ से पैसा कट गया और नेटवर्क चला गया, और सामने वाले को पैसा नहीं पहुंचा, और वो ट्रांजैक्शन हो गया कमिट, तो क्या होगा, यहाँ पे पैसा जो है ना यहाँ से कट जाएगा, लेकिन वहां तो पहुंचा नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हुआ नहीं ना। तो आइदर ट्रांजैक्शन कमिट होना चाहिए पूरा, या तो रोल बैक होना चाहिए प्रैक्टिकल उसमें। डिलीट,
डिलीट भी सिंपल है, सेम कमांड से। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, कोई भी जो रो हमने कौन सी ऐड की थी। डिलीट हो गई, ये जो हमने जो रो ऐड की थी वो डिलीट हो गई। अभी अगर मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ यहाँ से, तो ये जो मेरा जो मैंने जो ये डिलीट किया है, ये कमांड रोल बैक हो जाएगा। ये रोल बैक करूंगा तो ये जो रो है अभी भी यहाँ पे रहेगी। अब अगर मैंने इसको डिलीट किया और इसको कमिट कर दिया, तो वो चेंज जो है परमानेंट हो गया, वो नहीं दिखेगा। अब दूसरा है मर्ज कमांड। मर्ज कमांड क्या करता है ना, वो एक साथ दोनों काम कर लेता है। जैसे अभी अभी इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। अभी कुछ डेटा को, एक मर्ज कमांड है, वो क्या है ना, एक ही टाइम में अपडेट भी कर देगा, इंसर्ट भी कर देगा। तो सिंपल उसका सिंटेक्स क्या है, मर्ज इनटू, जो टेबल जिसमें करना है उसको यूजिंग, मतलब दूसरे टेबल, क्योंकि अभी ये इंसर्ट अपडेट कर रहा है तो ये कंपेयर करेगा। तो मैं जो दूसरा टेबल जहां से मुझे इंसर्ट अपडेट करना है, तो यूजिंग एम्प्लॉयज, दोनों टेबल सेम ही है। तो ये एम्प्लॉय की वो एम्प्लॉय की कंपेयर करेगा। मतलब वो रो वाइज करना चाहिए ना, अगर दो रो है तो मतलब एक 101 को 101 के साथ ही कंपेयर करके करना चाहिए। मगर मैच होता है तो वो क्या बोलेगा, नाम कर दे, नहीं तो एक एम्प्लॉय को इंसर्ट कर दे। मैं यहाँ से एम्प्लॉय जो 101 है उसको डिलीट कर दिया है हमने, जो एक कॉपी टेबल बनाया था वहां से। तो अभी ये कमांड चला के देखते हैं, ये कमांड क्या करेगा। ये क्या बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय में जो, अगर ये 101 नहीं है तो इसको इंसर्ट कर दे, नहीं तो अपडेट कर दे। अभी क्रिएट कमांड है, टाइपिंग नहीं करूंगा। क्रिएट, हमको कोई टेबल क्रिएट करना है। ये क्या होगा, ये जो है ये कॉलम नेम है, ये देखो, ये क्रिएट है, ये यूजर डिफाइन है, ये हमको ऐसा ही लिखना है। टेबल है, ऐसा ही लिखना है। ये जो डिफरेंट नेम में जो आ रहा है वही हम चेंज कर, ये डिफाइन कर सकता हूँ मैं एज ए यूजर, जो भी है, जो क्रिएट कर रहा है, जो भी कर रहा है वो, उसके बाद चॉइस है वो कुछ भी नाम रखे। तो मैं अभी मेरे समझ में आया तो मैंने टैब टेस्ट रख दिया है। कॉलम, उसमें जो कॉलम बनेगा वो नाम भी मैं दे सकता हूँ। तो मैं अभी आईडी दे रहा हूँ कुछ भी, उसको नंबर। मैं चार तरह का जो डेटाबेस है, वो जो डेटा टाइप है उनमें चार कॉलम बना देता हूँ। नेम, नेम क्या होगा, कैरेक्टर होगा। तो आईडी किसी का नंबर हो सकती है। नेम क्या होगा, नेम तो कैरेक्टर है, वो नंबर नहीं हो सकता। डेट ऑफ बर्थ, डेट ही होगी। अब जब कुछ इंसर्ट कर रहा हो तो जो डेटा जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो मैच होना चाहिए। ये नहीं कि मैं दूसरा कुछ भी डेटा टाइप इसमें डालूंगा, मैं बोलूँ तो ये जो होता है ना, कैरेक्टर जब लिखेंगे तो वो पूरा जो, जैसे अगर मैंने 100 लिख लिया तो 100 ही मेमोरी लेगा वो। वेर कैट टू क्या, अगर मुझे 10 मैंने लिखा, उसमें 10 कैरेक्टर ऐड किए तो 10 की मेमोरी लेगा। ठीक है।
ये चलेगा? नहीं सर। ये फेल हो जाएगा ये। वैल्यूज यूज करना है। नहीं, अभी भी नहीं चलेगा, देखो उसने बोल दिया। अभी अभी एक टेबल क्रिएट हो गया। अभी टेबल में मुझे लगा कि मुझे कोई एक कमांड, एक कॉलम और ऐड करना है। और सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। मतलब ये आपने जो कहा कि ये इसको ले जाके कैरेक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। मैंने मैंने कई बार ये बिहेवियर नोटिस किया है, मैंने यूज किया था इसको पोस्टग्रेस एसक्यूएल में। पर ये ऐसा क्यों करता है? आई मीन इज दिस बिहेवियर इज कॉमन और इज देयर एनी रीजन बिहाइंड इट? और भी इनबिल्ट दिया हुआ है उन्होंने, इनबिल्ट ना, इनबिल्ट कन्वर्जन करता है। अभी जो 100 है, अभी 100 को हम एज ए कोट्स भी मैं लिख के अगर इसको अभी इंसर्ट करूं, तो तब भी वो सेम ही सेव होगा, तो वो आई मीन इसलिए उसको समटाइम इट हैपेंस कन्वर्ट। विद द डेट एज वेल। मैंने कुछ डेट ये किया था और उसके बाद उसमें भी कैरेक्टर में बाद में अगर कभी ऐसा होता है कि इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो अगर कुछ ऐड करना होता है देन वी हैव टू पुट इट इन द सिंगल सिंगल कोटेशन एंड ऑल्सो कभी कभी ये थोड़ा करेक्ट, सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। करेक्ट है वो। और अगर देखो जो विचारे जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्मली हम लोग पहले समझे ये कि कैरेक्टर बोलते किसको हैं। हमारी जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रहती है, जो अल्फाबेट होते हैं A to Z करके, वही मतलब कैरेक्टर होते हैं। बट ऐसा नहीं है। कैरेक्टर ऐसा मतलब नहीं है बस। जितने भी, हाँ, जो कीबोर्ड पे जितने भी, वेदर इट्स न्यूमरल और नॉन न्यूमरल स्पेशल कैरेक्टर्स, जितने सब कैरेक्टर होते हैं। तो A से G, 0 से लेके 9, या जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, सब वो कैरेक्टर के अंडर ही फाल करते हैं। सही, करेक्ट। तो ये, हाँ हाँ, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी, क्लियर होनी चाहिए कि कैरेक्टर का मतलब कि कुछ भी उसमें, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, नॉर्मल कैरेक्टर्स भी हैं। और नंबर अगर हम बोलते हैं तो 0 से 9 वही नंबर है सिर्फ। वही तो सही। आई थिंक इस अभी देखो, ये क्लियर करेगा अंडरस्टैंडिंग को। अभी मैं ये भी, अभी मैं अगर डेटाबेस ने इंटरनली चेंज कर लिया, अभी मैंने सेम ही किया है, 100 को कोट्स में लिखा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो वो दिख तो सेम ही रहा है। वो उसने इंटरनली उसको पहले वाले में उसने 100 वो करेक्टर बन सकता है, इसलिए उसने उसको करेक्टर बना लिया। सब कुछ करेक्टर है, तो वो 100 को एज ए करेक्टर, लेकिन ए कभी नंबर नहीं बन सकता, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। अभी ये दोनों में कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, डेटाबेस देखो 100 100 ही दिख रहे हैं। इंटरनली वो समझ गया, वो इंटरनली चेंज करने जाता है। वो 100 को जब उसने करेक्टर बनाने गया तो 100 करेक्टर बन गया, ए को बनाने जाएगा, ए तो करेक्टर नंबर नहीं बन सकता, इसलिए ऐसा। और वो जो रहता है ना, जो डेट, डेट जो रहती है ना, डेट की एक डिफॉल्ट फॉर्म है। अगर कैरेक्टर में भी मैं जाके अगर ये जो अभी मैं देखो, अभी एक और अभी एग्जाम्पल दे, आज की डेट, देखोगे तो दिखने में तो दोनों, अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे कर आ दूं, गया था। जो बुशरा का जो क्वेश्चन था, अभी वो बोली कि उसने डेट इंसर्ट कर दिया। अभी जब मैंने अगर किसी कॉलम को करेक्टर बनाया है और मैं कोट्स में डेट फॉर्मेट भी दे दूंगा, तो उसको नहीं फर्क पड़ता, वो एज ए उसको सेव कर लेगा, और उसके लिए वो डेट नहीं है, उसके लिए वो करेक्टर ही है, वो उसको फॉर्मेट नहीं कर पाएगा। समझ गई मैं। सिंपल। हाँ, हम्म। अभी देखो मैंने करेक्टर में डाला, उसने कोट्स के अंदर, उसको नहीं मालूम क्या है, उसने कोट्स के अंदर है मतलब ये करेक्टर है, उसने इंसर्ट कर दिया, इसको भी अंदर जाके ये उसका बाय डिफॉल्ट फॉर्म है। जो डेटाबेस की फॉर्म है ना, DDMONYY जो है ना, डिफॉल्ट फॉर्म में वो इसी फॉर्म में लेता है। अब अगर मैं इसको कुछ दूसरे फॉर्म में दे दूं ना, ये भी तो डेट है ना, हम इसको भी तो लेते हैं ना, डेट फॉर्मेट, हम्म। ये फेल कर देगा अभी, हाँ। क्योंकि नॉट मैच, उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है
वो यही है। अगर मुझे इसको डेट में करना है तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये इसको डेट में चेंज कर दूं, ये वाला फॉर्मेट है। तो आपके केस में वो इशू था। मैं इसको, मुझे बोलना पड़ेगा इसको कि भाई ये जो डेट मैंने लिखा है ये वाले फॉर्मेट में इसको चेंज करके इसको इंसर्ट करो। कॉमा मिसिंग क्यों हो यस गया? यस, थैंक यू। ठीक है। तो अभी इसने ये इंसर्ट कर दिया क्योंकि उस टाइम उसके लिए वो करेक्टर हो गया था। वो एक ही, बाय डिफॉल्ट वो एक ही फॉर्मेट, ऑरेकल डेटाबेस एक ही फॉर्मेट जानता है बाय डिफॉल्ट। DDMONY जो है ना, उसके लिए डेट है बाय डिफॉल्ट। अदर देन अगर आपको कोई फॉर्मेट डालना है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये डेट है, ये वाले फॉर्मेट में आप इसको करो। वो तो एक टेबल, सिर्फ एक टेबल क्रिएट किया था, उसको ऑल्टर करना है, उसमें कोई कॉलम वगैरह ऐड करना है तो ये कॉलम ऐड हो गया वो उसकी। लेकिन जब ऐड करेंगे उसके जो पहले के जो वैल्यू है उसमें वो नल डालेगा नॉर्मली। ठीक है। टेबल ड्रॉप करना है। एक टेबल बनाया था। टेबल का नाम चेंज करना है, रीनेम। अब ये जो टेबल था वो नहीं रहा, अब इसका नाम चेंज हो गया है। जैसे कि हमारे यहाँ सिटी के नाम चेंज हो रहे हैं, तो वो नाम अभी चेंज हो गया है। तो इसमें ये आते हैं। क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, रीनेम देख लिया। ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करेगा ना, ट्रंकेट में जो जितना भी टेबल, अभी मैं अगर किसी टेबल को ट्रंकेट करता, और ये जो अल्टर, ये जो वाले कमांड है ना DDL, ये ऑटो कमिट रहते हैं। अगर समझो मैंने पीछे कुछ सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट किया हुआ है बहुत सारे डेटा, और मैंने आगे जाके ये वाला कमांड चला दिया DDL वाला, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप, ये ऑटो कमिट रहता है। ये पिछला जो डेटा है वो सारा कमिट कर देगा। ठीक है, क्लियर। तो ये ऑटो मतलब कमिट अगर है ये वाले जो समझे नहीं सर, ये रिपीट करिए। ये जो ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये जो 5 कमांड मैंने लिखे, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप रीनेम ट्रंकेट, ओके। ये ऑटो कमिट है। जैसे जावा में आप लोग बोले ना कि ऑटो कमिट हो जाता है, हम करते हैं। कैसे? देखो ये मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो ये खुद ही ऑटो कमिट हो जा रहा है। अभी मैं अगर कुछ चेंज करके कमिट हो जाए, अगर मतलब इसी ये ऑटो कमिट है ये। ठीक है। तो जब ये वाला जो कमांड है ना, क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप रीनेम ट्रंकेट, ये सारे ऑटो कमिट है। ओ, तो ये जब चला दिया ना, और कमिट हो जाएगा, मतलब कमिट क्या मतलब, मैंने उसके पीछे कितने भी ट्रांजेक्शन जो भी किए, कमिट मतलब वो परमानेंट हो गया, डेटाबेस में जाके सेट हो गया। क्रिएट ऑल्टर रीनेम हो गया। ट्रंकेट, ट्रंकेट जब करेंगे ना, पूरा जो डेटा है ना, ट्रंकेट का मतलब पूरा जो डेटा वो क्लियर कर दिया, क्लीन कर दिया। डिलीट है DML कमांड, मतलब डिलीट में आप वेयर कंडीशन लगा सकते हो, ट्रंक में वेयर कंडीशन नहीं लगा सकते। ओके। ट्रंकेट ने जैसे ही मैंने ट्रीट किया उसने कमिट कर दिया, ऑटो कमिट कर दिया। समझे, पूरा टेबल। और ये फास्ट होगा, वो स्लो होगा। ये फास्ट क्यों होगा, वो क्या करेगा, वो लॉग बना के रखता है। ये सवाल आता है कि कोई भी, ये भी सवाल बहुत सही कि पूछेगा डिलीट ही क्यों यूज करे, ट्रंकेट का। पहली बात तो दोनों अलग हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो है DML है, डेटा मैनिपुलेशन है, ये डेटा डेफिनेशन कमांड है। पहला डिफरेंस ये आएगा।
दूसरा ये डिलीट में जो है ना, आप वेयर कंडीशन लगा सकते हो, ट्रंकेट में वेयर कंडीशन नहीं, पूरा टेबल ट्रंकेट करेगा। अब दोनों में से कोई बोलेगा फास्ट कौन सा है, तो फास्ट कौन सा होगा? डिलीट फास्ट होगा, ट्रंकेट फास्ट होगा? ऑब्वियसली ट्रंकेट फास्ट होगा, क्योंकि Yes, ट्रंकेट sir. जो है ऑटो कमिट कर रहा है, वो लॉग रख नहीं रहा है। और जो डिलीट है वो लॉग रख रहा है। जब लॉग रख रहा है तो वो स्लो होगा, क्योंकि उस वो रोल बैक करना है, आसान है। तो ये है, ये थोड़ा डिफरेंस है। अब है ड्रॉप। अभी ड्रॉप टेबल, टेबल ही अभी नहीं है। अभी एक ड्रॉप टेबल मतलब पूरा, अभी एक सवाल आ जाता है, क्वेश्चन कर लेता है, ट्रंकेट और ड्रॉप में क्या फर्क है? देखो, ट्रंकेट ने जो किया ना, वो सिर्फ डेटा डिलीट किया। जो टेबल के अंदर, टेबल का स्ट्रक्चर जो है ना, वैसे की वैसे ही रहा। Yes. लेकिन ड्रॉप मतलब उसने टेबल ही ड्रॉप कर दिया। टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो जो चीज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जो ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उस Yes. टाइम जो ट्रंकेट में ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर का जो था डेटा, वो नहीं था, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कोई, ट्रंकेट ड्रॉप में क्या फर्क है, ट्रंकेट डिलीट में क्या फर्क है, फास्ट कौन सा है? और ये जितने भी हैं, ये जो डीडीएल जहाँ जो मैं दे रहा हूँ, ये सारे ऑटो कमेंट है। ये जो 5 कमांड जो है, ये हमको जब हमने इनका यूज किया तो हमें सही था। हाँ, फिर तो से वो कर अभी देता अभी हूँ। उस पर क्वेश्चन रेज हो रहा था। आई थॉट कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अभी किसी ने एक ये भी हाईलाइट किया था कि वो कैर आपने क्यों किया है, तो वैर कैर भी कर सकते थे। तो एक डिफरेंस भी बता दिए कि कैर कैर और वैर कैर में देखो, डिफरेंस है। कैरेक्टर का ही सब टाइप है। अभी आप लोग शायद जावा तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। जावा में कितने डेटा टाइप है? नंबर में कितने? इंटीजर, बिग, इंट, शॉर्ट। Eight. ऐसे इसमें भी, ये भी कैरेक्टर के अंदर भी होंगे आगे। क्या कैरेक्टर के अंदर क्या है? Single कैरेक्टर character वेर कैर interval टू tag. कैरेक्टर का ही फॉर्म है। दो, जैसे मैंने डिफरेंस बताया, कैरेक्टर अगर मैं कोई 100 डिफाइन करता हूँ किसी वेरिएबल को, अगर मैं उसको कैर डिफाइन करता हूँ, तो वो 100 की ही मेमोरी लेगा। और वेर कैर टू जब मैं डिफाइन करता हूँ, तो वो जितना मैं उसके अंदर एक वैल्यू डालूंगा, तो एक वैल्यू की मेमोरी लेगा। ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं। Okay. डिफरेंस है, वो उसका ही फॉर्म है। मतलब एक स्पेसिफिकली चीजें बनाई जाती है ना, किस सिनारियो के लिए क्या जरूरत है। Actually. तो इसमें भी कैर डिफाइन किया, तो फिजिकल कैरेक्टर ले सकते हैं ना इसमें भी। एक्चुअली जो ये इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली कैर और वैर कैर में मेजर जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जैसा साइद सर ने बताया कि वैर कैर में कैसे, अगर मैं 100 डिफाइन करता हूँ तो वो मेरा डायनामिक स्पेस रहता है। अगर उसमें कुछ स्टोर नहीं करता हूँ तो मेरा बैकएंड में वो कोई भी मेमोरी स्पेस नहीं करता है। अगर मैं कैर करता हूँ और 100 डिफाइन करता हूँ तो वो 100 कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेट कर देता है डेटाबेस में। तो ओरेकल डेटाबेस जो होता है, एक टेबल स्पेस क्रिएट करता है बैकएंड में, मतलब स्पेस क्रिएट करता है, टेम्प टेबल क्रिएट करता है। वहां पे वो 100 का एलोकेट हो जाता है। अगर आप स्टोर कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो भी 100 एलोकेटेड ही रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। और मोस्टली कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछता है कि वैर पूछा कैर जाता टू है। और वैर कैर में क्या डिफरेंस है। कैर में यही फर्क है, मतलब वो मेमोरी को ले लेता है। कैर मतलब अगर आपने 100 डिफाइन कर, एक वेरिएबल ही अगर मैं भी समझो कुछ लिख रहा होता, प्रोग्राम लिख रहा होता हूँ, एक कैरेक्टर 100 डिफाइन किया होता है, मैं उसमें एक ए भी सेव करूंगा ना, तो वो 100 की मेमोरी लेके ही बैठा रहेगा। वेर कैर टू वैसा नहीं, वो एक की लेगा। बस ये है वेरिएबल, उसका नाम ही वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल कैरेक्टर। तो सिंपल, मतलब ट्रंकेट मतलब आपका टेबल था, आप उसमें वापस से डेटा इंसर्ट कर सकते हो। आपकी जमीन है, आप वापस से घर बना सकते हो। ड्रॉप मतलब आप जमीन बेच दिए, खत्म हो गया, वहां से खत्म हो, आपको नई जमीन खरीदना पड़ेगी। सिंपल सा, ऐसे ले मैन में भी देखोगे अगर, तो वहां पे आपका Yes, sir. कमिट, जब जो भी ट्रांजेक्शन हमने किए उसको हम कमिट करेंगे, तो डेटाबेस में जाके कमिट हो सर जाएगा नेम से। हेलो। जी। तो रोल बैक में मतलब हमने जो अगर कुछ मॉडिफाई किया, डीएमएल अपडेट इंसर्ट कुछ भी किया, उसको डीएमएल डेटा कर लेंगे, डीएमएल अपडेट इंसर्ट डिलीट कुछ भी किया, उसके बाद रोल बैक कर दिया, तो वो जो चेंज हमने किया था हमारे सेशन में, वो रोल बैक हो जाए।
एक तो होता है कमिट रोल बैक, मतलब वो तो कमिट रोल बैक मतलब जितना भी मैंने अभी तक पिछला किया था वो सारा कर देगा। अभी जो रोल बैक है, रोल बैक मतलब मैं एक सर्टेन पॉइंट तक अगर मुझे कुछ करना है, उसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि देखो, सेव पॉइंट क्यों आया? जैसे अभी मैंने 10 ट्रांजैक्शन किए, मुझे रोल बैक 5 तक ही करना है, 5 को मुझे रखना है। अभी समझो ये जो एक सिंपल सा एक भी एग्जांपल लेते हैं। एक टेबल है, ये नाम है, अभी मैंने इसको चेंज किया, अभी नाम चेंज हो गया। भाई सॉरी, ईमेल किया, ईमेल चेंज हो गया। यस। अब मैंने बोला इसको सेव पॉइंट ए, मतलब यहाँ तक सेव कर दे। अब मैंने सेम जाके उसका ईमेल चेंज किया, तो अभी करंटली डेटाबेस में क्या है, उसका ईमेल आईडी एबीसी है। लेकिन अब मैं बोला यार मैंने ये गलत चेंज कर दिया, मुझे यहाँ तक वापस, अब अगर मैं रोल बैक करूंगा तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, एकदम पीछे वाले पे। देखो रोल बैक चलाते हैं हम, यहाँ पे से मैं ये जो कमांड कहाँ लेकर गया, ये उसके ओरिजिनल ईमेल आईडी पे नियंग, लेकिन मुझे वहां नहीं जाना था। मुझे था कि भाई मैंने जो पिछला जो चेंज किया जहाँ पे मेरा सेव पॉइंट है। अभी क्या एबीसी हो गया, क्योंकि हमने ये चेंज किया, फिर उसके बाद हमने ये अपडेट किया। वो डेटाबेस अपडेट करता, पिछला वाला नहीं। अब अगर मुझे था कि यार मैं गलत कर, मुझे यहाँ तक वापस जाना है, मुझे ये वाले पॉइंट तक मैंने जो यहाँ पे किया था, तो मैं उसको यहाँ तक मैं बोलूँगा रोल बैक टू सेव पॉइंट ए मेरे। तो क्या होना चाहिए, एन कोचर यहाँ तक उसने, यहाँ पे जो यहाँ का जो चेंज था अभी भी उसने रखा हुआ है। मैंने चलाया, एक अपडेट हो गया, इसको मैंने बोल दिया कि भाई तू इस पॉइंट पे मेरे लिए इसको भी एक कॉपी बना के रख। इसने क्या ओके होगा, सर। लॉग में एक कॉपी बना के रख ली इसकी अलग से। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके। मैंने अभी इसको चेंज किया तो इसने वापस उसको ओवरराइड कर दिया, क्योंकि ये तो ओवरराइड करते जाएगा। यस सर। लेकिन अब मुझे ये वाले पॉइंट तक वापस जाना था, कि मेरे यहाँ पे तक वापस जाना है। तो ये जब मैं इसको बोलूँगा कि मुझे इस पॉइंट तक वापस ले चल, तो ये इस वाले को रोल बैक करेगा। मतलब मैंने क्या ओके। बोला, रोल बैक टू स्वेप पॉइंट ए, मतलब ये रोल बैक कर दे और यहाँ पहुंचा दे। तो यहाँ पहुंचाने मतलब मेरी जो ये तो पहले ही मैं कर चुका था ए यस को। सर। ठीक है, तो उसने यहाँ तक लेकर गया, जबकि पहले तो कुछ और था, वाई चौक और कुछ तो था उसका। यस सर। तो ये यहाँ तक गया। ऐसे ही ग्रांट ग्रांट अभी जैसे कोई एक, अभी इसमें दिखेगा नहीं, दो स्कीमा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा टेबल को कोई दूसरा भी कर सके एक्सेस, तो उसको ग्रांट देते, या उसको एक्सेस हटाना है। सिंपल सी मेरी बाइक है, मैं किसी को जा भाई तुम चला लो, तो ये ग्रांट हो गया ना, कि उसने मुझे ग्रांट कर दिया है। मुझसे वापस ले लो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वैसा ही है इसका, मैं कल एक और स्कीमा बना के एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये हमारा हो गया। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो आज का हम यही रैप करेंगे। कल वापस से हमारा आगे का क्या रहेगा, कल ज्वाइन है, बाकी का आगे का जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे।